what was your strategy while preparing for the naval selection board? Curious to know कि भाई इतनी ज़्यादा motivation आ कहाँ से रही है? कि अपने गलतियों के नोट्स बनाओ। Or which attempt was it? It was my 10th attempt. What was again your mental state? Every SSB is not the same कि आप जाओगे और हो जाओगे। The mindset of All India Rank 1 while performing in SSB. Like, सबके पास आइडिया है तो you have to ensure कि कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है। what made you start this journey of joining the defense forces? This my brother also got motivated, who is a serving lieutenant commander in Navy. What do you think are the most common mistakes made by the candidates? एक लाइन बहुत अच्छे से कहा जाता है कि in SSB we are looking for officers not monkeys. You have been to SSB 19 times, man. Like, what backup plans did you have in your mind? Okay, so welcome Pallab bhai. It's really an honor, man, to have you at the Voices of Experience. तो पहले तो भाई definitely since we are meeting after long time, I just wanted to know how you feeling today and भाई कैसा चल रहा है? How's everything going? First of all, thank you so much for inviting at your channel. Again, I feel very, very great honored कि अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ after so long. And coming to what I'm feeling right now, I'm feeling very excited to interact with you. Again, it's like दो भाई दोनों तबाही type वाले angles को साथ. And I'm very happy to 100%. interact with you again. Okay, chalo man. And Pallab यार देख वैसे तो we know each other like since past 1 year. I have seen your contribution while guiding students, personally getting recommended 4 times, 3 times for Navy and 1 time for TGC this time. So I just wanted to know more about you, and specifically हमारी audience भी आपके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहती है about the place you are coming from, what motivated you to join the services, and since you have also been part of Indian Naval Academy, right? You use ex-INA term for yourself. So what's the entire scenario, man, and अभी क्या चल रहा है? All right. So starting with where I belong from and a little bit about my background. So as already Anurag Bhai has introduced myself, Pallab Datta. I belong from West Bengal, Bardhaman district, but presently residing in Visakhapatnam. Presently working for a US-based MNC as an HR and interviewing officer. Along with that, I'm also doing a master's in development studies from IIT Guwahati. And उसके अलावा I'm also into different startups. और इसके अलावा coming as already mentioned by a friend कि 4 बार recommend हुआ हूँ, वो तो that will be covering in the next part. And yes, coming to the important term ex-INA. So I have been to Naval Academy for NOC 37 course. That happens to be Naval Orientation Course 37, जिसमें I was for logistic officer training, and I was in Cheetah's Con. And more importantly, I spent around 48 days doing little bit of training, which already Anurag Bhai have covered in his whole channel. So yeah, I was part of it, but due to unfortunate reasons, I have to leave academy because of some medical issues. And at the same time, कुछ policies का changes भी चल रहे हैं, तो I'm awaiting for its clearances. So this is a little bit about that issue. Chalo man, a very vast experience, and I guess you have seen a lot of things. Baki Pallab bro, I just wanted to know yaar कि like what made you start this journey of joining the defense forces, and बाकी जो हमारी audience है, I guess they are also very curious to know about you, about your achievements so far. But what was that main spark to join the defense forces? Right. So I would start from the very basic. So let me tell you, my family, like my father belongs from Indian Navy. He recently got retired. तो वो बचपन से ही था कि seeing my father in white uniform, और he was a sailor initially. Eventually he grown up to be, eventually he become honorary lieutenant. तो served for 32 years. तो बचपन से देखा था. Seeing this, my brother also got motivated, who is a serving lieutenant commander in Navy. And कहीं ना कहीं it was like कि हाँ करना है, भैया पापा सब कर रहे हैं. And also I belong from that naval community. My friends making it. Started my journey long back in 2017 from NDA times. So it was like a slow start, but eventually ups and downs आए. And धीरे that basic motto of just wearing uniform eventually turned to getting commission, and also eventually to top in merit and other things. So ऐसे करके it started. And yes, thereafter in college I also joined NCC, Army Wing. Luckily I was the best cadet of my directorate as well as during the RDC 2020. And yeah, this is how that whole armed forces journey started. Okay, and भाई जब हम आपके SSB attempts की बात करें, तो you have been to SSB 19 times, man, है ना, and it takes a lot of courage, motivation. तो भाई audience is really that curious to know कि भाई इतनी ज़्यादा motivation आ कहाँ से रही है, because yes, during that entire journey you got recommended 4 times, but बहुत ज़्यादा बच्चे यार, bro, personally I have seen कि 3 या 4 attempt के बाद ना that saturation state arrives and you no longer want to appear for SSB, या फिर आप बाकी चीज़ों जो भी आपके प्लान बी प्लान सी होते हैं ना, उस पर ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने लग जाते हो.
So what made you keep going through this entire thing? All right. This SSB phase is divided into two parts. One is of 10 plus 2 attempts, and another one is graduation. So I have given around eight SSBs during 10 plus 2 attempt. So usme I was eventually getting conference out and screen out for NDA, TES, and 10 plus 2. Left no stone unturned in my preparation. I did took coaching from an offline institute, Okay. but it somehow ups and downs happened. And then, fortunately or unfortunately, COVID-19 came up. So there was a huge gap of 1.5 year, like of not giving SSB. इन दिस 1.5 year मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि फौज ही सब कुछ नहीं है. आई हैव टू प्रिपेयर फॉर अदर थिंग्स इन माय लाइफ. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जाम्स लाइक आरबीआई हो गया. took serious note about my placements, and also like actively participated in NSS, NCC, NGO activities. जहाँ जो भी मिलता था I used to do. एंड ये जो 1.5 साल का कूलिंग पीरियड था, विच आई से कि एसएसबी और नहीं देने के बीच में, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई रियलाइज्ड कि फौज ही सब कुछ नहीं है. एंड फिर जैसे ही आई एंटर्ड इन माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, आई रियलाइज्ड कि चलो ओके, एफकेट और सीडीएस का टाइम आ चुका है, लेट्स गिव इट अ शॉट. दो आई वाज अगेन नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी बैग ऑफ है ना, द रिजेक्शन वाज देयर, लाइक कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट. सो आई वाज, माय मेन मोटिव वाज टू गेट स्क्रीन्ड इन. I got AppCat, and eventually उसके तुरंत बाद I got conference out, and thereafter I eventually I made it to the SSB and finally got recommended. So वो वाला journey was in two parts, and yeah, in this way I gave around 19 SSBs, 7 screen outs, 8 conference outs, and 4 recommendation. थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, एक recommend conference out ऐसे भी रहा है. So though we will cover it in the, I hope, in the next part as well. Okay man, again salute to your dedication. बाकी आपने जैसे 8 SSBs अपने 10+2 टाइम पे ही दे दिए थे. अब बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ना, दे आर रियली कन्फ्यूज्ड एट दैट पर्टिकुलर एज कि यार आगे की प्लानिंग करें कॉलेज की, या फिर लाइक SSB की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए. सो सिंस यू हैव सीन एवरीथिंग and since you mentor and guide also other students, so what you would like to advise specifically the 10+2 entry students जो कि अपनी 12th appearing में हैं, या फिर जिनके पास अभी कुछ अटेम्प्ट्स रहते हैं, whether it's for NDA, TES और BTech Navy. So how you would like suggest them or guide them कि कैसे आप यार अभी से वो तैयारी कर सकते हो ताकि आपको ग्रेजुएट एंट्रीज का बेसिकली सोचना ना पड़े. Correct. So I will directly point out my mistakes which I did. Eventually वो अगर नहीं होता है, I still say to all my students as well as friends जो prepare करते हैं कि अपने गलतियों के नोट्स बनाओ. इट टुक मी वेरी लॉन्ग टू मेक नोट्स एंड इंट्रोस्पेक्ट. मुझे लगता था ठीक है, शायद एसएसबी की गलती है, मुझे नहीं लिया तो चलो. इट वाज अगेन, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज अ वेरी बिग मिथ कि एसएसबी की गलती एज सच नहीं होती. इट इज योर ओन मिस्टेक. एंड सेकंड चीज, आई वाज नॉट, आई वाज लाइक कि करंट अफेयर्स हो जाएगा, देखा जाएगा. इट इज मोर अबाउट मी माई सेल्फ. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रहता ही है कि लोग हमेशा अपने ऊपर ऐसे ही काम करके चल जाते हैं कि जो नेचुरल है वही दिखा के आ जाएंगे. बट एसएसबी इज मोर लाइक कि आप कैसे दिखा रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. लाइक इट हाउ एग्जैक्टली यू प्रेजेंट योर सेल्फ. सो आई यूज टू प्रेजेंट माई होल ट्रू सेल्फ, विच अगेन हैम्पर्ड मी अ लॉट. बैक टू बैक जब भी मैं स्क्रीन होता था, आई रियलाइज कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सच्चाई दिखा रहा हूँ. तो देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग व्हाट यू हैव टू शो. सो ये चीज मैंने नहीं कर पाया था. एंड एक और चीज मैं मतलब जो 10+2 एंट्रीज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, सी आई वुड से कि वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस, वेरी इंपॉर्टेंट. काफी 10+2 वाले या तो जेई की तैयारी या नीट की तैयारी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं. I was one such, though I also cracked JEE mains during my time in 2018 and 19. But थोड़ा फिजिकल फिट था क्योंकि उस टाइम पे काफी लोग नहीं रह पाते, प्रिपेयर कर रहे होते हैं. एंड सेकेंडली, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन्स एंड एडवांस, आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज भी, आई वाज लैगिंग. तो काफी लोग सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा एंड ऑल. फिर कुछ लोग बोलते हैं कितने महीने का करंट अफेयर्स करना चाहिए. आई सिंपली से कि जो भी है, जहां से जितना मिल रहा है पढ़ते रहो, बी कंसिस्टेंट इनफ. आप एक दिन 5 मिनट पढ़ो, अगले दिन आधे घंटे पढ़ो, एटलीस्ट 5-10 मिनट पढ़ते रहो. So उस टाइम पे I was not into that phase. So कहीं ना कहीं it took me a bunch of 8 SSBs to not make it. And one more last thing which I really admire कि वो चीज़ होनी चाहिए is you have to be open with feedbacks. है ना, I felt कि यार इसको क्या ही आता होगा, है ना, इससे क्या ही सुनना. So eventually in my graduation attempt I used to listen from my juniors, seniors and everyone. है ना, तो कहीं ना कहीं this is something which I learned. अपने 10+2 में रहते हैं कि हाँ हमने तो 12th में टॉप किया है, जेई में अच्छा किया है, क्या ही सुनना, इसको तो क्या ही पता इंडिया के बारे में. बिल्कुल बिल्कुल. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी ओपन टू ऑल द नॉलेज एंड एंगल्स. So this is what I would. This is the thing which I would advise. Okay, that's great, man. And you got recommended for Indian Navy like 3 times, right? And just tell us here what was your strategy while preparing for the Naval Selection Board, and what was basically your reaction when you got your recommendation for the first time? Right. So the coming to the strategy of Navy SSB.
अगेन एज आई टोल्ड मैं नेवल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो अगेन आई हैव टू प्रिपेयर मोर अबाउट माय फैमिली, माय फादर, ब्रदर, द कम्युनिटी विच आई बिलोंग फ्रॉम, एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, the terms and terminology, ships and all those things, ships, submarines and aircrafts and all not. तो वो तो बेसिक ही रहा, लाइक आई हैव टू प्रिपेयर थ्रू ऑल द जॉइन इंडियन नेवी वेबसाइट या जो भी जहाँ से सोर्सेज मिलते हैं लाइक विकीपीडिया, एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ मटेरियल्स फ्लडेड इन यूट्यूब एज वेल एज टेलीग्राम, तो वहाँ से आई यूज्ड टू कवर. Secondly, coming to the main part, that is Psych G2 interview, I worked on, again as I told, on the introspection areas पे, and और भी डिटेल में we can also cover in that, क्योंकि वो अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है ऑल टुगेदर. ऐसे करते करते आई इवेंचुअली वर्कड ऑन इट. एंड नेवी एसएसबी के लिए आई रियलाइज्ड वन थिंग, दैट सिंस आई वाज इन माय फाइनल ईयर, मुझे अपने कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है. मैंने जो एक्टिविटीज करी, मैंने अपने प्लेसमेंट सिनेरियोज पे कैसे काम किया, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड तो मुझे वो सब कोर एरिया से मैंने काम किया. And then this is the basic thing, and also yes, about my core domain of mechanical engineering, I did BTech in mechanical. So मुझे वहाँ से भी काफ़ी सारे चीज़ रेफरेंसेस यूज़ करनी पड़ी for my Navy SSB. And since Navy is a tech dominated services, तो somehow you have to be more fluent with the basics of like Bernoulli's principle, Archimedes principle and whatnot. तो वो सबको बैलेंस करते हुए I covered my this naval SSB preparation. Coming to the second part of the question, how I felt after getting recommended very first time. Obviously, there was around 90-95 candidates who reported in NSB selection, NSB Visakhapatnam for SSC Naval Architecture. I remember back in 2021 December. I'd say around 4 years back. And yes, thereafter what happened, 91 में से 20 odd got screened in, and I was waiting कि चलो शायद एक दो तो हो ही जाएंगे. But again, fortunate or unfortunate, I was the only one who got recommended, and I was just number one, and I was like, okay, top of the world. Like finally ये जर्नी खत्म हो रहा है, and I called my brother, father कि चलो हो गया. And I also felt very lucky that my brother was also in the same naval architecture branch, so मुझे लगा कि चलो we'll follow the footsteps of my brother. So this was what I felt, and I called all my seniors, mentors उस time पे. Okay, and bhai, you got your recommendation in ninth attempt, or which Uh, attempt was it? it was my 10th attempt Okay, precisely. okay, 10th attempt में you got recommended for the first time, and after that like you got recommended like 2 times more for Navy. तो वो कौन कौन से attempt थे आपके? It was my 13th and then 15th attempt. Okay, Correct. अब देखो भाई, द थिंग इज़ ना, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि सर हम हो गए रिकमेंड, ठीक है, उसके बाद एक या दो बार मे बी, है ना, इट वॉज नॉट देयर डे व्हेन दे गॉट स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट. तो जब आपका भी वो 10th के बाद 11th और 12th अटेम्प्ट था, सो वट वॉज गोइंग रॉन्ग इन दोज पर्टिकुलर अटेम्प्ट्स, एंड फिर 13th अटेम्प्ट के लिए वापस आते आते के लिए लाइक वट वॉज अगेन योर मेंटल state, and what was the mindset when you performed in the 13th attempt? So the very basic issue after getting recommendation is you feel that into your head, लगता है कि अब तो हो ही जाएंगे अगले बार, है ना, क्या ही प्रिपरेशन की जरूरत है. एंड इट वाज अगेन लाइक 6-7 months के गैप में था. सो अगेन आई शुड हैव मेड इट, बट आई फेल्ट कि चलो हो जाएगा, सेम बोर्ड, आई लकीली गॉट द सेम सेंटर. तो मुझे लगा अब तो कुछ नहीं है. सो वन इज ओवर कॉन्फिडेंस विच आई फेल्ट, मुझे नहीं रहना चाहिए था. एंड आई फेल्ट कि वो चीज उस अटेम्प्ट को अगर आई वुड हैव लाइक स्किप, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता. सेकंड थिंग वाज अगेन प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बेसिक्स. लाइक अगर आप जिस भी सर्विस के लिए जा रहे हो, सर्विस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए. लाइक एज सून एज आई गॉट रिकमेंडेड फॉर नेवी, आई वेंट फॉर आर्मी. एंड आर्मी एंड नेवी में थोड़ा स्लाइट डिफरेंसेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन एंड द ओरा विच इज नीडेड, ओरा प्लस प्लस वाली चीज है, तो वो चीज थोड़ी सी लैग हो रही थी, विच आई लेटर ऑन रियलाइज. एंड सो कहीं ना कहीं येस, द माइंडसेट वाज देयर कि आपको और प्रिपेयर करना है. एवरी एसएसबी इज नॉट द सेम कि आप जाओगे और हो जाओगे. इट इज द 5 days परफॉर्मेंस, अच्छे अच्छे बाहर हो जाते हैं. एंड आई एम वन ऑफ इट्स काइंड. एंड फिर येस, again when I went to my 13th attempt, like 11th and 12th, after I couldn't make it, so yes, 13th attempt I eventually made it, because all my areas were easily worked on, and same Navy and a Navy knowledge sara, so it was smooth enough. So in this way I worked on it. Okay, great man, great. And this time here, I just when I saw the merit list, है ना, of TGC, I found you as the all India rank 1. So man, what's the strategy? Just tell our viewers more about it. Like since you got all India rank 1, so वो कौन सी branch में था, कौन सी entry के लिए था? What was your mindset and basically the preparation strategy? Because it was your first recommendation for the army thing, right? Correct. So yeah, I will be again starting from where I started. Like see, after giving all these SSB's recommendation joining academy, I was like चलो ठीक है, बहुत हो गया हेल्प करना है अपने जॉब के साथ. तो I eventually joined IIT Guwahati for my masters along with my job and everything. So I was preparing with my studies in morning and working in evening, and this is how my schedule was. Like काफी कैंडिडेट सोचते हैं जो वर्किंग वाले हैं कैसे बैलेंस करें.
सो इट वाज वेरी टफ फॉर मी, मोर टफर बिकॉज पढ़ाई भी करनी है, और ऑब्वियसली जो सुन रहे होंगे दे नो पढ़ाई टफ हो जाती है आईआईटी में जाके, एंड इवेंचुअली शाम को ऑफिस का काम, फिर ऑल्सो गाइडिंग आउट कैंडिडेट्स. So yes, so yeah, coming to the question, like in which SSB and which entry I made it, it was for TGC 141, that is a permanent commission entry for Indian Military Academy, and I got recommended for like that entry for mechanical branch. There are around 6 to 7 branches, including civil, CSE, electronics, miscellaneous, and one more is there, mechanical. And around in that batch, around I guess 18, 19 candidates got recommended in my mechanical, and 6 are in the merit, out of which luckily I believe all because of Almighty's God, I was all India rank 1. And yeah, yes, and I got recommended from 32 SSB Jalandhar this time. Okay. And yes, काफी अच्छे मार्क्स दिए सभी को. Okay, so bhai, I just wanted to know, yeah, like what is the mindset of All India Rank 1 while performing in SSB? Like when you were here in your when you were here for your 19th attempt. So what was your mindset? Because आप बहुत टाइम के बाद भी SSB जा रहे थे. So the mindset, one basic mindset was कि आपको humble रहना है, क्योंकि ऐसा होता है कि already you have given 19 SSB, 18 SSB दे चुका था, 3 recommendation, I never tag and everything. Many people also knew me this time. जो लोग अभी सुन भी रहे होंगे, they might also realize this thing कि I was also guiding out candidates and then eventually going to SSB, meeting the students as well as the same community. It was like कि सर आपका तो हो ही जाएगा, आप क्यों आ गए, and it was in that zone. And मुझे लगा कि नहीं है, हवा में नहीं उछलना है, कुछ भी हो जाए ग्राउंडेड रहना है, बिकॉज इट वाज मोर लाइक कि डू और डाई. अगर आप नहीं हो रहे तो फिर पीपल लुक ऑन टू यू कि क्यों नहीं हो पा रहे. एंड एट द सेम टाइम इवन इफ यू आर मेकिंग इट ऑल्सो, यू हैव टू बी लाइक कि हाँ चलो ये तो होना ही था, तो आई हैव टू मेक इट एज सिंपल एज यू आर देयर एंड प्रिपेयरिंग. तो बेसिक माइंडसेट हम्बल रहना का था. सेकंड वाज यस, being focused in whatever is being asked या being whatever is being tested. ऐसा नहीं कि जैसे in TAT many pictures were repeated. Okay. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे तो आता ही है, मैं इसमें कुछ भी लिख के आ जाता है. I have to be in that zone of a candidate rather than being a mentor कि नहीं आपको पढ़ाना है, पढ़ाते वैसे सोचना है. Though all those ideas were clicking कि कैसे कैसे हुए. Pictures were new also, काफी सारे in this attempt also. Very new despite being giving lot of SSBs and seeing lot of pictures. So name many new pictures, and again approach was the basic कि आपको पिक्चर के स्टिमुलस को हिट करना है, and you have to ensure कि कुछ गलती इधर उधर ना हो. So the same applies with VAT, SRT and SD कि आपको वहीं पे रहना है. Okay, and bhai, what about the interview? Like how was the interview this time? It was like different from your previous attempts. Yes, interview was little different. Obviously, the simple questions like जो repeater या PRs को आते हैं कि क्यों नहीं join किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. Though I never say that I was this XINA and all, I just told कि medical issue and I have to leave academy, मतलब RMB and all मुझे बताना पड़ा. तो yes, this was one of the thing, and interview was smooth enough, 40-45 minutes, and it more or less कि आप गुवाहाटी में क्या कर रहे हो, आपने क्यों जॉब स्विच किया and all. नो डिफिकल्ट एज सच. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज इससे पहले जब मैं रेकमेंड नहीं हो पा रहा था फॉर द सेम एंट्री TGC 140 एंड 139 एज वेल, तो इट वाज लाइक ग्रिलिंग टाइप. दो आई आंसर्ड इट वेल, बट आई बिलीव अगेन कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ कैलकुलेशंस में आई फेल्ट लिटिल मिस्टेक, मतलब गलतियां हो रही थी. दिस टाइम आई वर्कड ऑन इट कि बेसिक कैलकुलेशंस, बिकॉज अगेन बीइंग एन इंजीनियरिंग एंड अगेन बीइंग टू IIT, तो थोड़ा बहुत वो रहता ही है कि कैलकुलेशंस स्टूडेंट गो रॉन्ग. तो इस बार आई वर्कड ऑन माई बेसिक कैलकुलेशंस. और या उसके अलावा इंटरव्यू वाज स्मूथ एनफ. बेसिक क्वेश्चंस ऑफ अबाउट माय लाइफ, PIQ. इट इज वेरी एविडेंटली टोल्ड बाय एवरीवन कि आपको PIQ पे काम करना है. एंड मैंने भी अपने PIQ के नोट्स बना के गया था कि प्रॉपर्ली एक एक जो वर्ड्स हैं, जैसे मेरे नाम के ऊपर मीनिंग क्या है ना, उसका कहाँ से सिंबल आया है, मतलब एवरीथिंग लाइक क्यों दिया है, किस लिए दिया है, एनी फेमस पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद इट. तो ऐसे करते करते हर एक एक वर्ड्स, अराउंड 14-15 PIQ में सीरियल नंबर्स रहते हैं, तो हर एक सीरियल नंबर से बनाया. The same applies with GTO. GTO में it was more like a group, तो उसमें I performed as if कि जैसे ग्रुप परफॉर्म करती है. या उससे एक चीज मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंट किया is something कि सबके पास आइडिया है, तो यू हैव टू इंश्योर कि कहाँ नहीं बोलना है और कहाँ बोलना है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जाते हैं कि फट्टा बल्ली पकड़ लेते हैं, तो इस बार एज यूजुअल नहीं पकड़ना था, मुझे पता था. आप जो भी हो, गिव द ग्रुप लीड कि चलो आगे जाओ. बट यस, है ना, आपको जहां जहां मौका मिले, चेंज प्लेसेस एंड यू हैव टू टेक द लीड. और GT, GD, GP ऑल्सो द सेम. आइडियाज कंट्रीब्यूट करो. इट इज नॉट ऑलवेज कि आप हमेशा टॉप फर्स्ट में रहो, आगे पीछे करते रहो, गिव चांसेस जहाँ पे जो लग रहा है. एंड लकीली हमारे ग्रुप से 4 लोग रेकमेंड हुए, which is also a good number out of 10. And yes, this is how I followed. And conference, तो it was like waiting was hardly a single minute से भी कम था. Okay. 35 seconds, and it was like जाओ, how was your stay, and that's it. मुझे लगा कि शायद या तो हो ही रहा हूँ या तो बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ. Okay. It was extreme cases.
मतलब आई नेवर फेल्ट एयर वन आएगा, एंड इट वाज ऑल ऑब्वियसली अ वेरी दिस थिंग, यार कैसे आ गया, क्योंकि या फॉर नेवी आई गॉट 2 4 and 5 तो था, वो अलग है, हम्म। बट दिस टाइम वाज क्योंकि पहले बार भी आप एक बार भी आर्मी के लिए कभी हुए नहीं हो, एंड सडनली मेकिंग एंड टॉपिंग वाज बिल्कुल, ऑब्वियसली इट वाज समथिंग स्पेशल, राइट? समथिंग वेरी स्पेशल. बिल्कुल. एंड भाई, लाइक देखो, अब आपके साथ कुछ बच्चे हैं, ठीक है, whom you would have seen कि they were great performance during SSB, but फिर भी उनका नहीं हुआ. But again, giving so many attempts, you have been to SSB 19 times. What do you think are the most common mistakes made by the candidates while preparing for their SSB, or while they execute their performance in the SSB in those 5 days? ओके, सो आई बिलीव बहुत लोग जो प्रिपेयर्ड होके आए थे इस बार, इवन इन दिस टीजीसी अटेम्प्ट आल्सो, एंड आल्सो वी सी लॉट ऑफ कैंडिडेट जो बहुत अच्छे हैं, वेरी स्मार्ट, गुड एकेडमिकली, स्पोर्ट्सली. अब क्या होता है, दे प्रोजेक्ट देयर रियल सेल्फ. लाइक अगर एक क्वेश्चन आता है कि whom do you approach whenever any problem arises, वो कहते हैं मम्मी को अप्रोच करते हैं, फादर को अप्रोच करते हैं. चलो आंसर में कोई गलती नहीं है, बट यू आर ओपनिंग सम सेट ऑफ न्यू क्वेश्चंस टू हिम और हर, एंड देन यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेवयार्ड. तो आई रियलाइज कि एकदम सच नहीं बोलना होता है. यू कैन इजिली से आई अप्रोच टू हुसएवर इज नियर टू मी. उस टाइम पे फादर मदर कोई भी हो सकता है. बीइंग डिप्लोमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एट वेरियस ओकेशंस इन बिल्कुल, इंटरव्यू. बिल्कुल. कि अदरवाइज क्या होता है, एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि मछली क्यों फंसी, क्योंकि मछली ने अपना मुंह खोला. True तो that. जब आप ज्यादा ही मुंह खोल रहे होते हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है. तो जनरली मैंने देखा जो हार्डकोर रिपीटर्स भी हैं, जो बहुत एसएसबीज दे चुके हैं, गेटिंग स्क्रीनिंग इज वेरी इजी फॉर देम. आई हैव सीन कैंडिडेट्स जिसने 17 18 बार दिया, और है ना 15 16 बार स्क्रीनिंग है, मतलब बिल्कुल. गुड एक्यूरेसी ऑफ स्क्रीनिंग. बट वही है कि सेम सिमिलर मिस्टेक्स. सो कि ज्यादा मुंह खोला. सेकेंडली, पिक्चर जब देखते हैं तो दे फील कि पिक्चर देखा और कहीं और ही दूसरे दुनिया में ही पहुंच गए. मतलब नॉट मैचिंग टू व्हाट इज शोन इन द पिक्चर, नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज. सो प्री कंसीव्ड बहुत ज्यादा हो जाता है. लोग को लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे और फिर हो जाएंगे, कि बस पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव तो सभी लिख रहे हैं, डेड बॉडी में भी लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, बट वही है कि क्या आप पिक्चर के डेड बॉडी को यूज कर पा रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो एनीवेयर. तो इन दिस वे आई फेल्ट बहुत सारे लोग का मिस्टेक होता है. एंड ऑल्सो इन जीटीओ ऑल्सो, जीटीओ में लोग को लगता है कि हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 12 13 कर लेंगे, बट इट इज नोवेयर द इशू, मतलब रीजन. एंड एक लाइन बहुत अच्छे से कहा जाता है कि इन एसएसबी वी आर लुकिंग फॉर ऑफिसर्स नॉट मंकीज. तो है ना, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि लोग को लगता है ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, 55 मार्क्स का होता है, हम 70 लेकर आ जाएंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है. तो आई वर्क की नहीं यार, अपने जो बेसिक सीरीज टेस्टिंग होती है, जीडी जीपी, उस पर फोकस करो, और ऑब्वियसली पीजीटी एंड ऑल. एंड इंजरीज आई वुड सिंपली से कि बहुत सारे लोग जोश जोश में इंजरीज लेकर आ जाते हैं, या उस माइंडसेट में रहते हैं कि हमें ये डू और डाई अटेम्प्ट है. मेरे लिए भी डू और डाई वाला ही फील था, बट आई वाज लाइक चलो जो होगा देखा जाएगा. एंड यस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज्ड इन ग्रेजुएशन अटेम्प्ट्स एंट्रीज की, काफी बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं हम फुल टाइम प्रिपेयर करेंगे एसएसबी के लिए, और दे लीव जॉब्स, दे डोंट टेक जॉब्स, एंड Exactly, दे डोंट वर्क. exactly. I just wanted to, sorry to interrupt, but I just wanted to include here this one thing. बहुत बच्चे हैं जो कि लाइक एक एक साल, दो दो साल, मे बी तीन तीन साल घर बैठ के वो सोचते हैं अब एसएसबी की तैयारी करेंगे. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग कि क्या भाई उन्हें इतना टाइम लेना चाहिए घर पे बैठ के, या फिर लाइक दे शुड डायरेक्टली गो इन टू अ जॉब, बिकॉज आई बिलीव दैट गिव्स यू द हाइस्ट लेवल ऑफ एक्सपोजर एट सच अ यंग एज. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मैन? सी आई बिलीव, देखो आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, फौज लव्स योर प्लान बी. मतलब फौज को प्यार है आपके बैकअप से. एंड लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखना, बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए. काफी लोग सोचते हैं कि हाँ फौज नहीं तो हम ये कर लेंगे, बट फौज चाहती है कि आपका बैकअप इज शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड सेकेंडली, देर इज अ क्वालिटी कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप काम कर रहे हो आफ्टर योर 21 या 20 के बाद भी कर रहे हो एनीथिंग, आप वेरी बेसिक, आप 1000 रुपए की भी नौकरी कर रहे हो तो भी चलेगा. एटलीस्ट दैट शुड बी लाइक कि हाँ यस, at least you are managing your own finances, at least you're not getting dependent. एंड ये चीज भी फौज को प्यार है. अब मान लो if someone is preparing for years and years, मान लो 1 साल हो गया, देखो टेकिंग अ ड्रॉप इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो ड्रॉप ईयर का फायदा होना चाहिए. जैसे कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं गेट एग्जाम्स के लिए, कुछ लोग होते हैं कि चलो हम लाइक एनी पीएसयूज के लिए ट्राई कर रहे थे एंड व्हाट नॉट, इवन आल्सो फॉर सिविल सर्विसेज सीजीएल एंड ऑल. तो अगर वो वैल्यू मतलब अच्छा रहा है, जैसे इफ यू हैव क्लियर्ड इट वेल एंड गुड. इफ यू हैव नॉट टेक अप एनी जॉब एंड पैरेलल डू दैट थिंग, then only you will be able to better reason out. Even if you're not able to clear it, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट yes, रीजनिंग एबिलिटी शुड बी एट पार. कि चलो हमने ये चीज सीखा, हमने ये चीज यूज कर रहे हैं, एंड मैं इससे अपना मॉनेटरी गेन्स या जो भी फाइनेंशियल गेन्स कर पा रहा हूँ. क्योंकि जब आप फाइनेंसेस मीट करोगे तभी फौज के माइक्रो मैनेजमेंट आप कर पाओगे. ट्रू दैट, मैन, ट्रू दैट. एंड इस चीज़ को लेके जैसे अगेन अब देर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ 10+2 ऑल्सो, वो एक साल ड्रॉप लेते हैं, फिर 2 साल ड्रॉप लेते हैं, एंड उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता.
तो इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग थिंग्स ना वो फिर एक्सक्यूजेस के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाते हैं इंटरव्यू, जिसकी वजह से मुझे लगता है और बैकफायर होता है. अब जैसे ड्रॉप ईयर तो मैंने भी लिया था आफ्टर माई 10+2 जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. बट येस, आई क्लियर्ड माई एनडीए रिटर्न इन माई थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट. अनफॉर्चुनेटली आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, बट अगेन इट वॉज अ लर्निंग एंड असेसर को वो रिजल्ट दिख गया आपका ओवरऑल, राइट? Exactly. Okay. And now, bro, I just want to know one thing from you. Like, since you were, raised in a military family, right? So, how that environment shaped you towards becoming the better version, and like, how's that grooming? It's like different from a civilian family. Right. Yes, there is a difference. I would definitely agree to it because I have interacted with a lot of civilians as well as civilian students also these days. So अब होता क्या है कि नेवी एंड आर्मी और एयरफोर्स गिव्स यू अ एनवायरनमेंट लाइक द स्कूलिंग्स. बचपन से ही आप देखते हो कि आपको प्रॉपर एटिक्वेट्स फॉलो करने हैं, घर से भी आपको प्रॉपर आता है. फिर आप बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, इन एंड आउट, लाइक स्पीकिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव हो रही होती है, कॉन्फिडेंस होता है, छोटे छोटे लीडरशिप रोल्स दिए जाते हैं. ये बाकी प्राइवेट स्कूल्स में भी होते होंगे एंड इवन इन केवीज एंड अदर डीपीएस एज वेल एज. बट थोड़ा मिलिट्री स्कूल्स में क्या रहता है कि यस योर पेरेंट्स, यू इंटरेक्ट विद सीनियर हायर, जो भी होता है आपके फादर के बैचमेट से मिलते हो, सीनियर से मिलते हो, जूनियर से, तो वो एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. सेकेंडली व्हाट आई बिलीव इज एनवायरनमेंट प्लेज दैट बूस्ट ऑफ कि हाँ आपके आसपास के लोग भी उसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दैट एनवायरनमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. और आई वुड नॉट गिव फुल क्रेडिट टू एनवायरनमेंट. काफी लोग की अगर संगति है कि नहीं करना है तो नहीं करते हैं वो लोग, एंड काफी लोग बाहर से भी अच्छा संगति बना लेते हैं. तो लकीली आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे अपने पूरे स्कूलिंग से लेकर कॉलेज में बहुत अच्छे लाइक माइंडेड संगति मिली, चाहे वो सिविल्स की तैयारी करने वाले हो या आर्म फोर्सेस की हो या फॉर एनी प्लेसमेंट्स एंड ऑल. सो यू हैव टू चेंज प्लेसेस जब जब जहाँ जैसा जरूरत पड़े. संगति है ना अलग अलग टाइप की होनी चाहिए. एक जैसे बनाओगे तो यू फील कि इतनी बड़ी दुनिया है. अगर मैं सिर्फ फौज की संगति बना रहा होता तो आई वुड हैव डन गुड इन कॉर्पोरेट्स और इवन इन माय अदर एरियाज ऑफ लाइफ. So yes, है ना, this is the difference. And military background also gives you good exposure to the like the day-to-day activities of फौज. जैसे I was very active, like जब भी नेवी डे होता था, सेलिंग्स होती थी, I used to visit that place. तो कहीं ना कहीं you see ground level operations and you feel कि हाँ ये चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है, करनी लायक है. It's like just like industrial connect जो कॉलेजेस में होता है, तो वैसे ही बचपन से हमें मिल रहा था, तो हाँ थोड़ा सा पुश करता है. Yes, this is how is the operations. एग्जैक्टली एंड यार वो फ़र्क मतलब मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया व्हेन आई आल्सो अटेंडेड माय एसएसबीज. सो कोई इंसान जिसका मिलिट्री बैकग्राउंड था या कोई सैनिक स्कूल वाला है या आईएमसी वाला है, तो उनकी ग्रूमिंग या माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है, राइट? बाकी नाउ पहले सिंस I personally know and many of our viewers know that you are founder of Cult SSB, right? So we just wanted to know more about that particular community and really like as I have seen your channel, so you have given more than 200 plus officers already into the army, navy, air force, coast and the coast guard part. So just tell us more about it, yeah. All right. Before starting this, let me tell all the audience that है ना अनुराग भाई ने मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए to promote, and I would be very भाई honest to whatever he has भाई told. सही So बात है, हाँ है ना, because many हाँ audience will feel कि हाँ आए हैं हाँ because हाँ. I and Anurag is like beyond this cult and off track एग्जैक्टली moments. यार, And एग्जैक्टली हम तो उस टाइम के भाई जब फ्रेशली आई गेस वी हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ एकेडमी, सो देन वी correct. सो गॉट एन कनेक्शन विद ईच अदर. सो यस मैन, Yes. ठीक है, मुझे लगता है कोई भी ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करेगा इसके बारे Yes. में. यू कैन जस्ट प्लीज स्टार्ट. So Cult SSB, we started long back in 2022 February, and it happens to be a good growing platform. So far, we have like produced 216 records, and out of which 72, 74 are commissioned officers from all the entries, all the services. We have got candidates from NDA, TAS, 10+2, CDS, AFCAT, SSC Navy, TGC, SSC Tech, JAG, VNARI entries, service entries, SCO, PCSL, ACC, CW, HET. Even we have got candidates from Territorial Army, and we have also got candidates from AMC non-tech service entry. तो बहुत सारे हैं. Cult SSB has got a like full form of it, which stands for Center for Understanding and Learning the Techniques to Crack SSB. We have got a good team of around 9 to 11 members, of both of teaching and non-teaching. They all are excellent in their job, and despite like I am giving podcasts here, my team is working day in day out, producing good results. And yeah, obviously हम सब मिलके काम करते हैं. It is not like my cult, it is more like our cult. And cult eventually काफी लोग को इसका full meaning भी पता है कि it's like a divine pathway to achieve something. So हमने उसी के थ्रू हमने नामकरण किया था इस इंस्टीट्यूट का. And it happens to be an online platform. We have got no physical existence as of now. So our team is spread across the country, and we all come and guide candidates through various
programs, like starting from screening till screening side G2 interview. We have got multiple programs with multiple fee structure, and all fees are very nominal, almost one fourth of the what you pay outside in any offline or even. And we are not competitors to anyone. Let me be honest. We all are growing together. So कभी भी लगता है कि yes, this institute is competing with something, no way. We all like love each other, है ना, कि चलो at the end of the day it is more like कि हाँ, we are producing something for the nation, True that. despite whatever bit we could have done, we could have do. So this is little bit about cult. Great, man, great. And I guess it's a great initiative. And Baki, to all the audience here, I will definitely love to share details of Pallab and his organization in the description part, so that you guys can visit him later on and disturb him regarding the guidance for your SSP, and definitely he will help you out a lot. भाई अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बैकअप प्लान्स का. नाउ सिंस यू वर इनटू सो मेनी थिंग, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग की, आपने 8 10+2 एंट्री टाइप पे ही SSBs दे दिए थे, फिर ग्रेजुएशन में आए. सो like what backup plans did you have in your mind, like while preparing simultaneously for the SSB part? Right. So since I prepared for JEE mains also, like I will be telling from the backup of 10+2 times. So I was preparing for JEE. Qualified JEE mains was getting NIT Northeast वाले मिल रहे थे. So back of the mind, चलो Northeast के थोड़े ऊपर नीचे होते हैं NITs, तो let's also give other private exams like private colleges के. So I gave exams for SRM, VIT, and eventually also gave exam for a Geetam University, which happens to be an university in Visakhapatnam. सो क्वालिफाइड ऑल ऑफ देम, बट सोचा कि चलो SSB देना ही है, तो यहीं पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं. सो आई ज्वाइन दैट, एंड यस, जैसे जैसे SSB खत्म होते गई 8 SSBs हो गई थी. कमिंग लाइक प्लान बी पे और फोकस बढ़ते गए कि चलो अब फौज हो नहीं रही, तो आई ऑल्सो फोकस्ड ऑन लाइक दिस थिंग कि चलो प्लेसमेंट्स की प्रिपेयर करते हैं. सो आई प्रिपेयर्ड माई कोडिंग एंड अदर थिंग्स, जैसे रीजनिंग, लॉजिकल जो भी होता है हम पढ़ते हैं. इंटरव्यू के लिए भी कॉर्पोरेट के इंटरव्यूज आर वे मोर डिफरेंट देन SSB, दो कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्डअप हो जाता है, बट कॉर्पोरेट्स के लिए मैंने लाइक प्रॉपर प्रिपेयर किया. फिर आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड बैकअप में सिविल सर्विसेज के लिए. आई ऑल्सो गिव 2 times प्रीलिम्स, couldn't qualify both of them, but yes, मैंने luckily RBI grade B का prelims clear किया था, which happens to be an exam for assistant manager, which is also a very good post for group A. And yes, तो वैसा backup में था. And also I took up a job. I was working in Tata Steels as graduate engineer trainee for 2 months before joining academy. And फिर उसके बाद as soon as I left academy, I also joined in Tech Mahindra for another 2 months. बट फिर लगा नहीं IT कोडिंग ये है ना मेरी बस की बात नहीं, या फिर मुझे लगा कि yes, I need to grill more on it. So I left all those things and I eventually joined a marketing firm. These all are my backup things which were running parallelly with my SSB and academy wala journey. And yes, I took up a job in marketing company, did there for 1.5 years. Then again gathered a lot of skills and exposure. फिर उसके बाद जाके I joined into the present company which I'm working as a HR and interviewing officer for a global recruitment services. तो यस ऐसे करते करते मैंने अपने प्लान बीस पे बार बार स्विच ऑन किया. एंड या लाइक आई ऑल्सो प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम्स विच हैपेंस टू बी लाइक अभी रिसेंटली आई क्वालिफाइड एंड आई हैव जॉइन्ड इन द प्रेजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ IIT. तो ये सब आई वाज प्रिपेयरिंग एंड या इसमें मैंने अपने सारे बैकअप्स रखे. Okay. तो भाई एज यू वर सेइंग कि बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए, बट भाई मुझे लगता है आपके तो 7 से 8 बैकअप थे, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पहले ही लग गया था पता कि भाई इसको तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बढ़िया कैंडिडेट कहीं ना कहीं निकल लेगा. एंड अगेन इन ऑल द फील्ड्स वेयर यू वेंट यार, यू डेफिनेटली एक्सेल्ड ओवर इट. हियर आई जस्ट वांट टू नो लाइक वन ऑफ योर पर्सपेक्टिव और इनसाइट कि बच्चों को कितने बैकअप प्लान्स रखने चाहिए, बिकॉज अभी भी भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं पर्सनली उनकी जब बातें सुनता हूँ ना, वो अंधाधुन बस एक ही रोड पे चल रहे हैं एंड आगे वो बोर्ड लगा है आर्म्ड फोर्सेस. बट देखो यार, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे लगता है आपके हाथ में नहीं है. एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद द 6th day ऑफ योर SSB, दैट इज़ योर मेडिकल्स. उसके बाद फिर मेरिट है, फिर कुछ बच्चे लेट्स से आगे अकेडमी भी जाते हैं एंड देयर ऑल्सो दिस फेस सम इंजरी, सो मेनी थिंग्स. सो कितने बैकअप प्लान्स होने चाहिए एंड इस सब चीज़ के साथ कैसे डील करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सो ज़्यादा नहीं होने चाहिए. आई वुड सिंपली से मैंने लाइफ में इतने बैकअप रखे, मेरे थे हमेशा 2 ट्रैक्स चलते थे साथ साथ. इवन लाइक अगेन इवन लाइक आई एम वर्किंग विद एन इंस्टीट्यूट, ऑल्सो हैविंग लाइक एज वन ऑफ द माई स्टडीज एज बैकअप एंड ऑल्सो जॉब. तो 2 से 3 मतलब 2 तो मैक्स मतलब मिनिमम रख लो विच विल बी हैपनिंग. क्योंकि देखो ऐसा होता है कि many a times these days recession, layoff and all those things are happening. तो अगर आप कहीं कॉर्पोरेट्स में भी हो तो there are chances कि आप शायद ना रहो उधर. तो you should also be like financially gainfully कहीं पे employed रहो. जैसे you can also explore options for stocks and mutual funds and all, so that at least थोड़ा बहुत आपके savings रहे.
एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि 2 बैकअप इज सफिशिएंट. अदरवाइज अगर आप एक भी रख रहे हो along with whatever you're doing, that is more than sufficient if you feel very confident. क्योंकि आई वाज लाइक कि चलो, बिकॉज एज अनुराग भाई टोल्ड कि 6th डे से असली कहानी स्टार्ट होती है, तो मेरे लिए 6th डे में ही असली एसएसबी स्टार्ट होती थी मेरी. तो हाँ, कहीं ना कहीं दैट मेडिकल जोन वाज देयर. तो मुझे Exactly. लगा ठीक है, अगर नहीं हुआ, क्योंकि गेटिंग रिकमेंडेशन वाज लाइक ओके डिफिकल्ट, इवेंचुअली वो भी हर्डल हट गया. तो गेटिंग फिट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब. तो यस, दैट वाज समथिंग आई डिड. एग्जैक्टली एंड भाई मैं सच बताऊँ, बच्चों को ये लगता है ना कि रिकमेंड होने के बाद मज़े मज़े, बट जो रिकमेंड हो जाते हैं ना उन्हें पता है वो असली मज़े क्या हैं. बेसिकली वो जो मेडिकल वाली एंग्जाइटी, फिर मेरिट तक का वेट, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. एंड वो आपको पक्का है कि मेरे हिसाब से प्रॉपर एक ऑफिसर माइंडसेट वाला बंदा बना ही देती है कि भाई जितनी चीज़ें हैं उसे प्रैक्टिकली सोचो एंड लीव ईच मोमेंट, राइट. एंड बाकी आगे की कुछ एस हैं, सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड डोंट जस्ट थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट इट कि पहुँच ही गए हो अकेडमी. जो भी आगे के लिए एस एस बीज लाइंड अप हैं, डेफिनेटली दे शुड प्रिपेयर फॉर इट, राइट. बाकी पल्लव ब्रो, एज वी मूव टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस अमेजिंग इंटरव्यू, आई जस्ट वांट टू नो दैट एनी वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद एनी वन आउट देयर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स. एंड कैसे वो अपनी प्रेपरेशन को बेटर भी कर सकते हैं एंड एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेपरेशन कर सकते हैं कि लास्ट में डेफिनेटली दे गेट द रिकमेंडेशन विच दे आर लुकिंग फॉर. Okay, so one principle which I followed, like when I was, as soon as COVID happened, like जैसे ही start हुआ, so there was something which I learned from Srimad Bhagavad Gita, and जो it is not a religious line, like it is very simple, कि निष्काम कर्मा, हम सुनते हैं कि आपको कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है. And it is also written somewhere in Bible, also in Quran and other religious texts also, कि आपको अपना काम religiously करना है, rather than getting कि नहीं attached हो जाना कि अरे मुझे क्यों नहीं मिल रहा. लोग सोचते हैं कि मुझे recommend ही होना है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ. आई फेल्ट एक टाइम के बाद कि चलो आपको पर्सनालिटी ग्रूमिंग करते रहना है. हर एसएसबी जा रही हो, लर्निंग समथिंग, मेकिंग गुड नेटवर्क्स. टिल डेट आई हैव गॉट फ्रेंड्स मोर देन माय कोर्समेट्स इन एकेडमी जो नहीं हुए recommend, और वो लोग दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट देन ऑल दोस माय कोर्समेट्स. दे आर वर्किंग इधर इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ईवाई एंड व्हाट नॉट. एंड कुछ लोग तो इवन आईएएस आईपीएस भी बन चुके हैं. वन सच इज आई वुड लाइक है ना प्राउडली से इज मिस्टर सत्यम गांधी, हु हैपेंस टू बी एन आईएएस ऑफिसर ऑफ recently all India rank 10 भी लेकर आए थे. So he is a good friend of mine. So see, this is something which no other things will eventually मिले. आप कुछ भी तैयारी करो, you will not get. SSB is one such कि आप physically मिल रहे हो. तो yes, ये चीज करी. And और एक मूल मंत्र is like when you start preparing anything, तो हमेशा याद रखना आपको एक अच्छा कुछ भी कैंडिडेट बनना है. Like if I am preparing for SSB, you should be like अच्छे से तैयारी करनी, rather than कि नहीं यार पढ़ लिया, होगा होगा देखा जाएगा. तो ना हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग. ट्रू दैट. सो इनिशियल मेरे साथ बहुत हाफ नॉलेज वाला था, मिथ्स थे काफी कि ऐसा ही करना है, ऐसे ही करना है. देन आई वाज लाइक अरे जो होगा देखा जाएगा. एंड इट इज मोर लाइक कि आपको लेट गो करना है. डिटैचमेंट इज लाइक डिटैचिंग फ्रॉम द रिजल्ट्स. सो ऐसे करते हुए आई डिड. एंड या दिस इज द मूल मंत्र व्हिच आई वुड गिव टू ऑल माय friends and those who are preparing for SSB and for any other exams in life or for life also. Okay, In great general. man. That was again very insightful message at the last of our conversation. Baki bro, it was really an honor inviting you here at the Voices of Experience, and I really wish that whatever you are looking forward, you achieve all those things. And Baki, this interview and the insights that you shared, it will help a lot of students, right? Baki, that's all here from mine. Okay, thank you so much for being here with me for the past like 30 to 40 minutes, and here we come to the end of the interview. Thank you so much, Anurag bhai. Thank you for inviting me. Good luck. Okay, Jai Hind. okay, okay bro. Jai Hind. Bye bye.